From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. آئیے سیدھے اندر چلتے ہیں۔ اس بار ہم نجات کے دو پہلوؤں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پڑھنا عبرانیوں باب 9 آیت 28۔ عبرانیوں کا 9 باب آیت 28 میں ان دو پہلوؤں کے بارے میں بات کرنا ہے جو اب تک نظام کو سمجھ نہیں آیا۔ یہ کہتا ہے یہاں تک کہ مسیح کو ایک بار پیش کیا گیا تھا بہت سے لوگوں کے گناہوں کو برداشت کرنا، سب کا نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا، اور یہ دوسری بار ظاہر ہوگا گناہ سے بے تعلق ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ وہاں اس چھوٹی سی تفصیل کو دیکھو، مجھے اسکرین پر بائبل کی آیت چھوڑ دو۔ بچانے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو اس کا انتظار کرتے ہیں، اور میں حیران تھا کیا لوگ جانتے ہیں آپ وہاں کس نجات کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھو نظام، مذہبی نظام اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے جسے مسیح نے پہلے ہی بچایا ہے، جو روح ہے۔ روح لہذا وہ لوگوں کو بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر انجیلی بشارت کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کی روح کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ ہم انہیں اپنے آپ سے بچا رہے ہیں۔ یہی نجات ہے کہ اب ایک امید ہے مومنوں کو بچانے کے لیے۔ مومنوں کو یاد رکھیں کہ وہ پہلے ہی یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ مسیح کو بہت سے لوگوں کے گناہوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک بار پیش کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور بہت سے لوگوں کے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اب وہ دوسری بار آتا ہے کہ دوبارہ گناہوں کو دور نہ کرے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت سے لوگوں کے گناہوں کو دور کر چکا ہے۔ اسے صرف ایک بار پیش کیا گیا، نہ 2 بار نہ 3 بار۔ ایک جھٹکے میں وہ ماحول سے گناہ کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا، لہذا وہ لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے دوسری بار نہیں آنے والا ہے، جو کہ پروٹسٹنٹ نظام بشارت کے وقت کر رہا ہے۔ جب ہم گلیوں میں نکلتے ہیں تو وہ مومنوں کو تلاش کرتا ہے، کافروں کو نہیں۔ مومنوں کو تبلیغ کا جنون حاصل کرنے کے لیے۔ اور کس چیز سے بچایا جاتا ہے رسول؟ ٹھیک ہے، اب کو دیکھو، ہمیں آپ کو جسم کے شیطان سے بچانا ہے۔ شیطان تباہ ہو گیا، لیکن جو اس نے آپ کے جسم میں چھوڑا ہے، آپ کا جسم فریبی خواہشات کے تابع ہے۔ آپ کے پاس جسم ہے کہ گناہ کا جسم، یہ نہیں کہ آپ گنہگار ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی گناہوں کو اٹھا چکے ہیں، لیکن گناہ کا جسم بولتا ہے اور یہ آپ کے خلاف ہے، اور وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا ایک محاورہ ہے، چیزیں کتنی بری ہیں، میں بیمار محسوس کرتا ہوں، میں مایوسی محسوس کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ برا ہونے والا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مجھے یہ احساس ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بہت جھوٹ بولتا ہے، وہ آپ کو بہت سے خیالات کے ساتھ بمباری کرتا ہے۔ آئیے افسیوں کے 4:22 کو پڑھیں تاکہ اب دیکھ سکیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پہلے سے ہی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ماضی میں پڑھی ہیں، لیکن ہمیشہ زیادہ ہے۔ 22ویں آیت کو دیکھیں۔ افسیوں 4:22 دوسری آیت ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ماضی کے طرز زندگی کے بارے میں۔ بوڑھے آدمی کو اتار دو جو ابھی تک وہاں ہے۔ غور کریں، پابلوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ وہاں تھا۔ یہ داغدار ہے، فریبی خواہشات کے مطابق۔ اور اس طرح دیکھو کہ آیت 23 میں کیا کہتا ہے، اور اپنے دماغ کی روح میں تجدید ہو، یہی نجات ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں فضل میں بڑھنا، مومنوں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، ان کے دماغ کی روح کو تازہ کرنا تاکہ وہ چیز حاصل نہ کریں جو 22 آیت کہتی ہے، جو فریبی خواہشات ہیں، اور پھر غیر مختون کی خوشخبری پہنی۔ آیت 24 اور نئے آدمی کو پہنو جو خدا کے مطابق سچی راست بازی اور تقدس میں پیدا ہوا ہے۔ تم کپڑے کیسے پہنتے ہو؟
जानने वाला। हाँ, तेरे लिबास को इल्म कहते हैं, और ना सिर्फ कोई इल्म, अब जो कपड़े पहनते हैं वो लिखे हुए हैं। मैं गैर मख्तून की खुशखबरी। और फिर मसीह वो कहता है, एक और सबूत को देखो कि मैं ही आदमी यसू मसीह हूं। कोई नहीं, जब तक जो जाहिर हुआ। यसू मसीह आदमी कोई भी मोमिनों को ज़हन में नहीं बचा रहा था। वो इसे शैतान से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनको गुनाह से बचाने की कोशिश करना, उनको बचाने की कोशिश की ताका उनकी रूह किताब जिंदगी में लिखी जाए, ताका उनका नाम जिंदगी की किताब में लिखा जाए। जब ये पहले ही लिखा हुआ है, खुदा वहां किसी को नया नहीं लिख रहा है। इसीलिए रसूल कहता है कि हटा दिया। देखो इब्रानी क्या कहते हैं। आइए इब्रानियों 9:26 को देखें। वरना दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक इसे कई बार मसाइब का सामना करना पड़ता, लेकिन अब 2000 साल पहले, सदियों के आखिर में, एक बार और सब के लिए जाहिर हुआ। गुनाह को दूर करने के लिए खुद की कुर्बानी से। जब कैथोलिक चर्च आपको मेजबानी देता है और आपको कम्युनियन देता है, तो ये आपको बताता है कि वो आपको मसीह का जिस्म दे रहा है, वो आपको दोबारा पेश करते हैं। जब वो आपको इकरार में डालते हैं, तो वो अहद के खून को बातिल कर रहे हैं। वो हर इतवार को एक इज्तिमा में यसू मसीह को रौंद रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते कि इसने 2000 साल पहले एक बार और हमेशा के लिए ऐसा किया था? जब एक प्रोटेस्टेंट नाम नेहाद मुक़द्दस इशाया लेता है, तो वो जो करता है वो नाफरमानी है, क्योंकि इसने कहा, ये मेरा नए अहद का खून है जो आपके लिए पेश किया जाता है। माजरत वो कहते हैं बहुत से लोगों के लिए। आइए इसे देखते हैं। मैथ्यू 26:28 को देखो। देखो ये क्या कहता है। यसू नासरी जब वहां उनके साथ था। मैथ्यू 26:28 कहती है, वो कहते हैं, क्योंकि ये नए अहद का मेरा खून है। कि सब के लिए। वहां कैसे कहते हैं? बहुत से लोगों के लिए ये उंडेल दिया जाता है, गुनाहों की मुआफी के लिए। और मैं ताम से कहता आवी कि अब से मैं अंगूर के इस फल में से मजीद नहीं पीऊंगा। अरे कोई ताज्जुब नहीं कि वो इसे आखिरी इशाया कहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये आखिरी था क्योंकि हम ऐसा नहीं करते। ये नए अहद नामे की नाफरमानी है। कुछ शराब पीने की कोशिश करो और यसू मसीह की तज़ीम के लिए रोटी का एक टुकड़ा खाओ, लेकिन ऐसा करने से जो तुम करते हो वो इसकी बेइज्जती है, क्योंकि वो खून गुनाहों को बर्दाश्त करने के लिए सिर्फ एक बार बहाया गया था। इसलिए आपको ये कहने के लिए शराब का गिलास पीने की अलामत में नहीं होना चाहिए कि वो खून है। तुम कितनी बार वो खून पियोगे? इसने गुनाह को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। इसलिए वो दूसरी बार गुनाह से ताल्लुक के बगैर आता है, क्योंकि एक बार 2000 साल पहले वो इसे छीन कर ले गया था, वो दोबारा क्यों ले जाने वाला है? वहां ये कहता है कि वो दूसरी बार आया है उनको बचाने के लिए जो उसका इंतजार करते हैं। और कौन है जो उसका इंतजार करते हैं? ये सिर्फ आप और में नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए है जो 2000 साल पहले मर गए थे, कि इसके लिए वो पहले ही मोमिन है। इसलिए ये कहता है कि खादी ने मनादी की हमाकत के जरिए मोमिनों को नजात दिलाई। मोमिनों के लिए, काफिरों के लिए नहीं। काफिर काफिर हैं। एक बार काफिर, हमेशा काफिर। वो पोजीशन में काफिर हैं। कभी तो काफिर था, कभी ना मानता, मगर मोमिन था। हाँ, तुम एक भीड़ थी जो भेड़िए जैसी नजर आती थी, लेकिन तुम भीड़ थी। मसला उनका है जो भीड़ बकरियों की तरह नजर आते हैं और अंदर से भेड़िए हैं, ये मसला है। तो हमारी नजात 2000 साल पहले हुई थी, बहुत पहले। और फजल में बढ़ने की उंजेली बशारत ये वही करती है। देखो इब्रानी 10:14 क्या कहते हैं। एक ऐसी आयत जो अपने शायद ही सुनी हो। कहता है, क्योंकि एक ही पेशकश के साथ कामिल बनाया हमेशा के लिए इन लोगों के लिए जो मुकद्दस हैं। इसने उन्हें बनाया क्या? कामिल। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वो गुनाह में पैदा होता है?
नहीं पुराने अहद में सलीब से पहले हाँ। जैसा कि डेविड ने कहा, मेरी माँ ने मुझे गुनाह में हामला किया। लेकिन सलीब के बाद बच्चा दुरुस्त पैदा होता है, कामिल पैदा होता है। लेकिन वो नहीं जानता, लिहाजा हम एक तब्दीली करने जा रहे हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को सपर रेस कहते हैं। जरा तसव्वुर करें कि हमारे किसी मुबारक के घर एक बच्चा पैदा हो रहा है। वो इसके साथ बचाए हुए बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं। वो इसे अपनी पहली रफाकत करने पित्समा लेने बच्चे को बचाने के लिए आज की तमाम मजहबी रसूमात करने के लिए नहीं ले जाते हैं। नहीं, बच्चा कामिल पैदा होता है। वो बख्शा हुआ जायज मुकद्दस पैदा हुआ है। वो नहीं जानता। वो और एक ऐसी नस्ल का तसव्वुर करें जहां बच्चे पैदा होते हैं और वो पहले ही जानते हैं कि वो ऐसे हैं। ठीक है, कोई जुर्म नहीं होगा, जुर्म खत्म हो जाएगा। आपने इतनी परेशानियां क्यों पैदा की है? क्योंकि आपको मालूम नहीं था। औरत और मर्द जो मेरी विजारत से सुनते हैं, तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुमने इतने मजाक क्यों किए? क्योंकि आपको इस बात का इल्म नहीं था जब आप छूटी थी। अगर आपके वालिदैन ने आपको शुरू से ही सच कहा होता, आप इतनी तकलीफ से न गुजरे होंगे। तो मुजरिम कौन है? पादरी। मुजरिम कौन है? पोप का ओहदा। मुजरिम कौन है? कैथोलिक चर्च। और फिर प्रोटेस्टेंट। वो तमाम लोग जो आपको सच नहीं बताते। वो आपकी तमाम बदकिस्मतियों और दुनिया में मौजूद बदकिस्मतियों के जिम्मेदार हैं। दुनिया भर में जो इंतशार है वो सच न कहने की वजह से है। क्योंकि एक बार जब आप सच को जान लें तो सच आपको आज़ाद कर देता है। और फिर भी अगरचे आप पहले से ही बरकत वाले हैं, आप मसाइल पैदा कर रहे हैं क्योंकि आपके पास आपका गोश्त है। तुमने पूरी तरह कपड़े नहीं पहने। और जब आप कपड़े पहनने जाते हैं तो आपके पास पुराने मजहबी कपड़े होते हैं और असली लिबास पहनना बाज़ औकात मुश्किल होता है। बस अगर इब्रानियों 10:14 में ये कहता है कि इसने एक ही नजराने से इन लोगों को कामिल बना दिया जो माकुदुस थे और मुकद्दस बहुत से हैं, 2000 साल पहले से लेकर आज तक वो बहुत से हैं, वो तमाम लोग जो सलीब के बाद पैदा हुए थे पहले ही कामिल पैदा हो चुके हैं। तो हम कलसियों को समझ सकते हैं। पहला बाब आयत 28। देखो क्या कहता है। कलाशंस 1:28। ये फजल में बढ़ने की हकीकी उंजेली बशारत है। ये हकीकी है जो कोई नहीं कर रहा, बस फजल में बढ़ रहा है। इस उंजेली बशारत को कौमों के सामने पेश कर रहा है और वो कामयाब हो जाएगा। बाबरकत। पहला बाब 28 आयत कहती है, जिसका हम ऐलान करते हैं, हर आदमी को नसीहत करते हैं और हर आदमी को पूरी हिकमत के साथ तालीम देते हैं। क्या पेश करने के लिए? मसीह यसू में कामिल हर मर्द और औरत के लिए। वो कहता है हाजिर कामिल। इब्रानी 10:14 कैसे कहते हैं? एक ही पेशकश के साथ इसने उन्हें हमेशा के लिए कामिल बना दिया। तो पौलुस ने कामिल पेश करने के लिए क्यों जिदोजहद की? क्योंकि रसूलों को ये बात समझ नहीं आई और उन्होंने लोगों को गुनहगार बनाकर पेश किया। इसलिए पतरस ने कहा, जब इन्होंने इससे कहा हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर आप कामिल हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा हम पतरस क्या करें? पेड्रो के मुंह में कोई इत्तिला नहीं थी। इसने उनसे कहा, तौबा करो वाइपर्स। आप अपने महबूब के साथ इस तरह का सलूक करने जा रहे हैं। बाबरकत। वहां मौजूद वो तमाम मुबल्लिगीन जिन्हें आप एक कोने पर यह कहते हुए देखते हैं कि तौबा करो, शैतान तुम्हें ले जाने वाला है, वो जहन्नम मौजूद है, वो झूठे हैं, ये बुरे दरिंदे हैं, वो हम जैसे अच्छे जानवर नहीं हैं, ये बुरे दरिंदे हैं, धोखेबाज और शरीर है। वो तमाम मजहबी लोग पादरी जो खुशखबरी पेश नहीं कर रहे हैं और तमाम कामिल पड़ोसियों को पेश नहीं कर रहे हैं। ये रऊनत के मुजरिम हैं, मिंबर के मुजरिम हैं, गालियां देने वाले हैं, जिनका मुंह छुपाना जरूरी है। ये सब क्योंकि ये सारे घरों को धोखा देते हैं, खतना वालों की तरह। ठीक है, यही वो तबलीग करते हैं, खतना। देखो टैटू क्या कहता है। आइए टाइट्स को पढ़ें ताकि आप देख सके। टाइट्स बाब 2। वो सब वहां मुलव्वस हैं। ठीक है, पीटर पहले था और फिर वो फाहिशा जो कैथोलिक चर्च से पैदा हुए थे। देखो वो क्या कहता है। तिस बाब 2। माजरत पहला बाब आयत 10। वो कहते हैं क्योंकि अब भी बहुत से जिद्दी लोग हैं, बातिल की बातें करने वाले और धोखेबाज। वो वहां के मुअज़्ज़ज़ हैं, मुबश्शिर। ज्यादातर खतना वाले ज्यादातर किया
खतना वाले। खतना की खुशखबरी किस को सौंपी गई? पतरस रसूल को। तो पतरस और दूसरे रसूल धोखेबाज हैं। वो कहता है जिनके मुंह को ढांपना चाहिए, जिसने पूरे शहर पूरे घर को परेशान कर दिया, बेईमानी के फायदे की तालीम दी जो मुनासिब नहीं है। ज्यादातर किस चीज के बारे में? खतना वाले। गलेशियंस 2:7 ये क्या कहता है? खतना करने वाले धोखेबाज हैं। और गलतूहे 2:7 क्या कहते हैं? कहता है लेकिन इसके बरक्स जब इन्होंने देखा कि नामुख्तोनों की खुशखबरी मेरे सुपुर्द की गई है। पतरस की इंजील किस चीज की? टाइट्स 2:11 के धोखेबाज कौन है? टाइट्स 1 से 11 माजरत। धोखेबाज और जिद्दी वो हैं जो खतना करने वाले हैं। और खतना करने वालों का सरदार कौन था? पीटर। ये वो इंजील थी जो उसके पास थी। ये वो खुशखबरी है जिसकी आज मनादी की जाती है, वो जो धोखा देती है, जो लोगों को सच्चाई से बेखबर रखता है। फिर फजल में बढ़ते हुए वो तबलीग करता है दुनिया भर में वाहिद विजारत, जो नामुख्तोनों की खुशखबरी सुनाता है, क्योंकि वो सच्ची खुशखबरी है, पतरस और रसूलों की नहीं, जिसकी बपतिस्मा देने वाले गिरजाघर और एक कोने पर मनादी करते हैं। वो खतना की तबलीग करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो ईमानदार हैं और मैं इस पर यकीन भी रखता हूं, वो कबूल करते हैं। दूसरे कहते हैं ये वही है खतना और गैर मख्तून पीटर और पोलिस एक जैसे हैं। मुबारक देखो ये ऐसा ही है जैसे शैतान और मसीह एक जैसे हैं। नहीं तो मसीह दूसरी बार उनको बचाने के लिए आता है जो इसका इंतजार करते हैं। यकीनन मुझे यकीन है मैंने तुम्हें बचाया। आपको बचाया नहीं गया, ठीक है, आपको आपकी पैदाइश से पहले ही बचाया गया था। लेकिन सिर्फ वही बचाए गए हैं जो फजल में बढ़ते हुए विजारत के हैं। इसलिए वो आपको नहीं समझते। इसीलिए जब आप बोलते हैं तो वो आपको कहते हैं नहीं नहीं, देखो ये अजीब बात है। यकीनन ये अजीब है, क्या तुम नहीं देखते कि वो झूठ से जीते हैं, फरेबी ख्वाहिशात की। और जो ताकत उन पर जाहिर होती है वो एक फरेब देने वाली ताकत है जो उनकी तरफ भेजी जाती है, जो उनके पास खुदा की तरफ से भेजी जाती है, कि जो मुझ में रहता है वो तुम्हें भेजता है। और वो झूठ पर यकीन रखते हैं। आपको हक दिया गया है एक बाबरकत। आपको हकीकत का पता चल जाएगा और ये आपको बनाएगा मुफ्त। मैं इस हफ्ते कुछ खूबसूरत नेमतों के साथ शेयर कर रहा था। मेक एलन की तरफ से कुछ मुबारक लो। मरीना और मिगुएल, मैं उनसे कह रहा था जब ईसा नासरी जाहिर हुआ, वो एक ऐसा फर्द था जो वो महसूल लेने वालों के साथ, गुनहगारों के साथ, टुआहे के साथ, उन दिनों के शराब पीने वालों के साथ घूमता था। तो ऐसा लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ऐसा सरशार आदमी होने के नाते, ठीक है, इसने कोई गंदी चीज नहीं खाई, ना ही इसने शराब असाइडर पिया, वो एक शख्स का पागल था। तो जब उसने यसू के बारे में सुना तो कहा, अरे लेकिन ये नहीं हो सकता। ये आदमी क्यों कहता है कि वो ये चीजें करता है? और वो इन लोगों के साथ घुल मिल जाता है। और जोआन ने इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये कहता है कि इसने 2 शागिर्द भेजे। पूछो, फिर इससे पूछें कि क्या हम उसका इंतजार करेंगे या कोई और आएगा। और फिर आप पहले ही जानते हैं कि इसने क्या जवाब दिया। इसने इनसे कहा, देखो जोआन से कहो बाकी के बारे में भूल जाओ। जोआन को बताएं कि लंगड़े, अंधे, मुर्दे जी उठते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और फौरन जोआन ने कहा, यह चाबी है, इसलिए मैं इसे जिस्म में नहीं देख सकता, मुझे यह देखना है कि आया इसमें अलामात हैं कि वो मसीहा है। काश ऐसे बहुत से लोग होते
کہ وہ تحقیقات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے دیکھیں یسوع کی طرح اگر آپ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، جو کیا جاتا ہے اس پر یقین رکھو، ثبوت کو دیکھو۔ یہ خوشخبری آپ کو بچاتی ہے، آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کا اندھا پن دور کرتا ہے، یہ آپ کو روشنی بناتا ہے، آپ کو معاہدے کا اعتراف کرتا ہے، یہ آپ کو زندگی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مبارک، مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے ہی شروع کر رہے ہیں الوداع کہنا، لیکن ایک آخری آیت ہے جو میں آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں، عبرانیوں 8:11۔ عبرانی 8:11 کہتے ہیں، اور کوئی اپنے پڑوسی کو نہیں سکھائے گا، اور نہ ہی کوئی اپنے بھائی سے کہے کہ رب کو پہچانو، کیونکہ سب مجھے جانتے ہوں گے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی انجیلی بشارت میں لوگوں سے کہتے ہیں، دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم خداوند کو جانو؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے۔ اگر یہ وہاں کہے تو کوئی نہیں کہے گا تم رب کو جانتے ہو۔ اور پروٹسٹنٹ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم خداوند کو جانو، لیکن یہ نہیں کہا جاتا بابرکت۔ ہم جو فضل میں بڑھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ تمام چنے ہوئے لوگ تمام بہت سے پہلے سے ہی خادونت کو جانتے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ مذہب انہیں یہ بتانے میں ناکام رہا ہے کہ مسیح نے ان کے لیے کیا کیا ہے، اور اسی لیے دنیا ویسا ہی ہے۔ اس لیے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب دیکھ رہے ہیں کہ عصمت دوری، جرائم، حادثات، ہر وہ چیز جو ہو رہی ہے ایک عالمی انتشار ہے، اور صرف ہماری خوشخبری قابل ہونے کا جواب ہے۔ قوموں کو شفا دے، جب تک وہ نہیں مانیں گے۔ یہ بگل جو بول رہا ہے اس کی آواز پر افراتفری مچ جائے گی اور تباہی۔ تو بابرکت یہاں اس وقت میں اب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی اطاعت کریں۔ کوئی نہیں کہے گا تم رب کو جانتے ہو۔ میں نے کتنی بار اس نظام میں دھوکہ کھایا، کیونکہ میرے لیے وہاں سے گزرنا ضروری تھا۔ میں اپنے والدین کے پاس گیا، دیکھو ماں تم رب کو نہیں جانتی۔ میں نے اپنے تمام دوستوں سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ رب کو جانیں۔ میں ایک جیل میں گیا اور کہا یہاں رب کو کتنے جانتے ہیں؟ تصور کریں، یہ دنیا ہے، یہ قوموں کے لیے زہر ہے۔ وہ تمام مبلغین، وہ تمام گرجا گھر بند ہونے چاہئیں، ان کے منہ بند ہونے چاہئیں۔ اپنے منہ کو ڈھانپنے کا مطلب ہے کہ وہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے منہ کو ڈھانپنے کا مطلب ہے کہ ان کا وجود ختم ہو جائے، یہ کہ ان کا وجود ایک نام نہاد چرچ کے طور پر موجود نہیں ہے اور کام جاری نہیں رکھتے کیونکہ یہ مفید نہیں ہے، وہ سچائی کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ متضاد ہے۔ لیکن ہر شہر، ہر بستی اور ہر قوم کے بدترین دشمن ہیں وہ مندر جن میں کراس ہیں۔ جب رب آتا ہے وہ دیکھو وہاں شیطان ہے، 666 دجال۔ جب وہ حقیقی مسیحی مخالف ہیں، کیونکہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں جو انہیں کہنا ہے۔ ہم ان کے مخالف ہیں۔ ہم یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں۔ تصور کریں ہم یسوع مسیح سے محبت کیسے نہیں کر سکتے؟ وہ واحد ہے جو ہمیں خوش کرتا ہے، وہ بھیجا ہوا ہے، وہی ہے جو اپنے منہ کی چمک سے راستہ روشن کرتا ہے۔ فضل میں بڑھنے میں برکت ہے، مشن کے ساتھ آگے بڑھو، مت روکو، ہم آگے ہیں، دیکھو۔ ہم محبوب تک پہنچ رہے ہیں، ہم منتخب اور پہلے سے طے شدہ تک پہنچ رہے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو انجیلی بشارت سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو سامنے ہونے کی ہمت کرتے ہیں۔ یہ صرف دور نہیں جا رہا ہے، ارے وہ دور نہیں، وہی ہے، ادھر دیکھو، رب آ چکا ہے۔ رب پہلے ہی زمین پر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آیا ہے،
اور یہ کہ اب کامل ہیں، اب آزاد ہیں، اب کو معاف کر دیا گیا ہے، اب مقدس ہیں۔ اسے حاصل کریں، ایک بار جب آپ اسے حاصل کر لیں گے، آپ کی سمجھ روشن ہو جائے گی، ایک بار آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب پہلے ہی دریا کے دوسری طرف ہیں، مبارک۔ اب صلیب کے دوسری طرف ہیں، پہلے نہیں بلکہ صلیب کے بعد۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مبارک ان تمام جگہوں پر جہاں انجیل چل رہی ہے، ان تمام فرمانبرداروں کو کہ جس چیز کی وہ تلاش کرتے ہیں وہ مسیح کی ہے، نہ کہ اپنی یسوع مسیح کی وہ عہد کی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، پہلے ہی تبدیلی ہے۔ بعد میں ملتے ہیں، مبارک میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔